everybody. Good evening to all of you. Myself A.K. Zha, MSc in Maths, PGT in a private school. This is the video of trigonometry for class 9 in other states. In for Delhi state, it's for class 10th, 11th and 12th. You know, trigonometry is a part of mathematics. First, I am giving you some introduction about myself. Believe me, I am working in a private school, but the system of a private school is not much better. The government school teaches better than the private school, but in the manner of discipline, the private school is better than the government school. Actually होता यह है कि मैं जो ये वीडियो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, that is the low income child. Few child studied in Mount ACC school, Mount Carvent school, Model school and so many larger school like DPS school. But about 70% of the students studying in a low standard school and the teaching attitude at that school is not much better. They have language problem, they have other problem too. But in this video, I make your mathematics, the part trigonometry very easier to you. Here is a word trigonometry. It is made up of two words, trigo and metry. देखो बच्चों, तुम्हें जो स्कूल में टीचर बताते, मैं भी स्कूल में टीचर रहा हूं, जो टीचर तुम्हें टीच करते वो अपने स्टैंडर्ड से टीच करते। हायर स्टैंडर्ड के बच्चे जो क्लास में होते वो तो बेटर रूप में समझ सकते, लेकिन जो लो लेवल के स्टूडेंट होते उसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वो ना तो क्लास में क्वेश्चन पूछ सकता है, ना टीचर उसे बेटर रूप में समझाने का कोशिश करता है। मैंने देखा है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में काम किया हूं, जो लो लेवल के बच्चे होते, जो फेल्योर कैटेगरी के बच्चे होते, मैं फेल्योर नहीं कहूंगा, असफल नहीं कहूंगा, but those student who is unable to ask any question to respective teacher, they suffer a lot. So watch this video carefully. I am A.K. Zha once again, PGT of Maths in a private school. Just I am going to teach you about trigonometry. Let us consider here trigonometry. That is tri plus gonometry is totally depend on right angle triangle. Let us a right angle triangle. Perhaps all of you have knowledge about right angle triangle. A triangle whose one angle is of 90 degree is called right angle triangle. तुम देख रहे हो ABC is a triangle, angle B is 90 degree, so it is right angle triangle. Trigonometry depend only on right angle triangle. See here, the angle just opposite the right angle, we called it as hypotenuse, and whatever you are taking the angle, the side just opposite that is perpendicular and remaining side is base. It means the name of proper sides of a right angle triangle is given. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, जिसे यह समझ में नहीं आता, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का तुम्हारा वीडियो हो रहा है, जो तुम YouTube पर हमें सर्च कर रहे हो, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हूं जो कि टोटली स्लम एरिया में रहते, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेटर नहीं है, मे बी वो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते। तो आज तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाइपोटेनियस को जो तुम कहते हो, जो तुम्हारा हिंदी मीडियम का स्पॉन्टेनियस है, हिंदी मीडियम जो प्रोनाउंसिएट होता है, इसे तुम कर्ण के नाम से जानते हो, इसे तुम आधार के नाम से जानते हो और इसे लंब के नाम से जानते हो। ट्रिगोनोमेट्री टोटली डिपेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो तुमने यह एंगल लिया, एक मैं सिंबल यूज कर रहा हूं जिसे शायद तुम जानते हो, इसे हम थीटा कहते हैं। ओके, तो यह थीटा एंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते और तीन साइड होते। इन तीनों एंगल और तीनों साइड में आपस में रिलेशन होता है। इन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम सभी को यह नॉलेज हो जाए कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज होता है। आखिर वह ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है? There are 6 trigonometrical ratio in trigonometry. They are considered as sine, S-I-N, sine. Second is C-O-S, cos, and then after T-A-N, tan. Okay? बच्चों ध्यान से देखो, ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉस और टेन।
और जब इसे कन्वर्ट करके देखोगे तो साइन का कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक। कॉस को कन्वर्ट करके देखोगे तो सेक, और टेन को कन्वर्ट करके देखोगे तो यह कॉट होगा। अब तुम यदि बारी बारी से काउंट करो तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गए? 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जाते, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया। शायद तुमने सीख लिया। एक बार मैं तुम्हारे लिए फिर रिपीट कर देता हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब मैं तुम्हें थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट जो है वह हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड में और एंगल में रेशियो देता है। तो अब मान करके चलो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके तुम्हें एक साइड दिए हुए हैं और रिमेनिंग साइड तुम्हें निकालना है। देखो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी राइट एंगल है। हम एंगल सी को एक एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कॉमनली हम थीटा करते हैं। अब तुमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में क्या सीखा था? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इन एंगल के साथ हम सभी को एक एक करके एडजस्ट करते हो। तुमने देखा था SIN साइन हुआ था, और इसके साथ यदि हम सिंबल यूज कर लें तो यह कहलाएगा साइन थीटा। नाउ टेक द रिलेशन ऑफ दिस एंगल बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हियर इज साइन थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू बेस by hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular by base. Cosec theta is equal to hypotenuse by perpendicular, और sec theta is equal to hypotenuse by base, और lastly tan theta is equal to base by perpendicular. अब तुम कहोगे, तुम्हें शायद होता होगा कि नहीं आप तो फिर फास्ट चलने लगे। मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं। यदि तुम्हें एक बार मैं लेक्चर दे दिया और तुम्हें कहूं कि तुम याद करके कल सुना दो, जो आमतौर पर टीचर करते हैं, तुम्हारे स्कूल के भी टीचर करते नहीं करते, झल्ला जाते हैं कि तुमने याद नहीं किया, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। उन टीचर को छोड़ दो, तुम मेरी बात को मानो। देखो ये कितने आसान है, तुम आसानी से तुम समझ सकते हो। टीचर का कहना होता है, वो कहते हैं, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें यदि मैथ सीखना है तो तुम्हें कुछ कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को बोल्डनेस से तैयार होना पड़ेगा। अब देखो इतने फार्मूला को मैंने एक बार में लिख दिया। मैं टीचर हूं, मेरा एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का, मैंने एक साथ बार लिख दिया। बट तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूं। तुम चाहते हो कि यह कोई इजी वे हमें मिले जिसके चलते मैं इस फार्मूला को फार्मूलाइज ना करके इजी वे में इसे लर्न कर लूं। देखो एक एरिया, केवल तुम 3 वर्ड याद रखो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। क्या बोला मैंने? एक बार तुम अपने आप से रिपीट करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। याद रह जाएगा ना? एकदम इजी वर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, तुम घर में भी यूज करते हो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब तुमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सीखा था, मैंने 1 by 1 रिपीट कराया था, तुम्हें शायद याद होगा। अब उसे तुम यहां लिख लो, यह हो जाएगा साइन, सेकेंड था कॉस, थर्ड था टेन, लास्ट साइन का अपोजिट तुमने किया था कॉसेक, कॉस का अपोजिट किया था सेक, और टेन का अपोजिट किया था कॉट। तो अब यदि तुम देखोगे तुम्हें यह फॉर्मूला वेरी इजी लगेगा। हमने पहले क्या लिखा था? साइन थीटा इज इक्वल टू P by H, और यहां साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? P by H। कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा था मैंने B by H, कॉस थीटा है ना B by H, यहां भी देखोगे कॉस थीटा B by H है। टेन थीटा P by B लिखा था, और टेन थीटा P by B। अब इनको यदि तुम भूल भी जाओ और अपने टीचर को कहो सर दैट्स इज द इजी प्रोसेस वी हैव टू लर्न ऑल द फार्मूला, यू कैन इजीली फॉर्मुलाइज ओनली रिमेनिंग द 2 वर्ड्स पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। और हरि हरि बोल तो करते ही हो, क्लास में भी करते हो, बच्चे को चिढ़ाते हो। थोड़ी इजी नहीं हो गया? बड़ी आसान से तुमने सीख लिया। अब तुम चाहोगे कि हम ट्रिगोनोमेट्री को कुछ सीख तो लिए, लेकिन हम इसका यूज कैसे करें? तो यूज करने के लिए देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि तुम जानते हो किसी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते, यदि तुम्हें 3 पार्ट्स में से A, B, C राइट एंगल ट्रायंगल है, 1, 2, 3 पार्ट्स होते, एक एंगल तुम्हें मालूम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सो वन एंगल इज डेफिनेटली 90 डिग्री। यू कैन इजिली इवेल्युएट इफ रिमेनिंग 2 पार्ट इज गिवन। एग्जाम में जो तुम्हारा मोस्टली क्वेश्चन आएगा, दैट इज गिवन, दिस एंगल इज गिवन, you have to find the relation between this and this. You have easily
In all the trigonometrical ratio, you have relation among them. Now consider it. If this angle is given, हम बता रहे हैं कि trigonometry का use हम कहाँ करते हैं. Suppose करो you are flying a kite at this height. This one is your ropes, and you are at a distance of suppose x from the bottom of the building. The kite is flying at the top of the building. Suppose this one is a h, this one is a x. If you have knowledge of this, we have the just side opposite the 90 degree is hypotenuse. मैंने पहले लेक्चर में बताया था. एंगल के ठीक अपोजिट में जो साइड होता है इसे तुम क्या कहते हो, परपेंडिकुलर कहते हो. मैंने इसे हाइट लिया है परपेंडिकुलर को, जिसे तुमने p कहा था. इस केसेज में हमने उसे हाइट ले लिया और इसे x लिया. सपोज करो यह तुम्हें दिया हुआ है 20 मीटर. फिगर बना करके दे दिया. दिस वन इज गिवन 20 मीटर, दिस वन x, दिस वन 30 डिग्री एंड दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और बगल में तुमने देख लिया यह दिया है फाइंड x. इस फिगर से तुम्हें x निकालना है. नॉर्मली यह तुम्हें बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जो 9th से बिल्कुल 10th में आया है और जिसका फर्स्ट लेक्चर है उसके लिए शायद ये हार्ड अब नहीं होना चाहिए. तुम यदि मेरे वीडियो को ऑब्जर्व करो तो तुमने क्या सीखा है, क्या लिखना है तुम्हें. लिखने का भी मैं स्टडी बता दूं. इन आरटी से राइट होता है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या हम लेंगे, हमें 10 लेना होगा क्योंकि वी वांट ए रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर और बेस. और P बाय B का रिलेशन कौन देगा, पंडित, बद्री, प्रसाद और हर बोले. P बाय B का रिलेशन 10 देगा और 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ तुम्हारा AB है, बेस जो BC है. अब एक जो यहाँ तुम्हारा कंसेप्ट होगा, अभी तुम नहीं सीखे थे, अभी तुम मान करके चलो. एक्चुअली 10 30 डिग्री का वैल्यू हमें तुम्हारे बुक में दिया होगा, तुम्हें कुछ कंसीडर करने होंगे. अभी मैं उसे लेकर के चल देते, तुम कंसीडर करो, फिर मैं इसे भी सिखाऊंगा. 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है. इसे 1/√3 कर लो. AB we have given 20, so AB is equal to 20. BC we have x. Therefore, by using cross multiplication, you will get x is equal to 20√3. If its unit is not given, you should write unit. Okay, that is the answer of x. You easily find x. No problem you have. Now, let us second formalize. We have 6 trigonometrical ratio. Between them, there is a relation 2. What the trigonometrical ratio? Repeat once again. That is sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Now see the relation between them. If you have sine theta, if you multiply it by cosec theta, you will get 1. What it means? Sine theta multiply cosec theta gives you 1. And similarly, cos theta multiply sec theta gives you 1. And tan theta multiply cot theta, it also gives you 1. These 3 are important formulas. और आपको इसे कैसे याद करें, आप तो जल्दी जल्दी लिखते गए, हम कैसे याद करना है तुम्हें फिर मैं याद करने के लिए बताऊंगा. कि जब तुमने पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल लिखे थे तो क्या यूज किया था, तो तुमने यूज किया था, इधर लिया था साइन और इधर लिया था कॉसेक. ठीक है ना. तो देखो साइन का इनवर्स कॉसेक हो जा रहा है क्या, इनवर्स फंक्शन तो तुमने पढ़े हो. साइन का इनवर्स हुआ तो देखो यही साइन का इनवर्स हो गया. क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा. तो साइन का इनवर्स कॉसेक हो गया. तो देखो वही यहाँ है, साइन का इनवर्स जैसे तुमने कॉसेक किया था, कॉस का इनवर्स सेक किया था और टेन का इनवर्स कॉट किया था. तो ये सभी एक दूसरे के इनवर्स हो गए. साइन को कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 1 हो गया, कॉस को सेक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 1 हो गया और टेन को कॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 हो गया. नो प्रॉब्लम यू है, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा. अब यदि तुम अपने आप को स्मार्ट शो करना चाहते हो, इसी 3 फार्मूला को तुम 9 फार्मूला में कन्वर्ट कर लो. वो कैसे, तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो मैंने कर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा. तुम चाहो तो कॉसेक थीटा को लेफ्ट साइड रख लो, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा. गेट इट. नाउ सेकेंड, वी हैव cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1. सो व्हाट अबाउट cos थीटा, बड़ी इजीली कर लोगे. cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा. एंड व्हाट अबाउट sec थीटा, इट इज इक्वल टू 1/cos थीटा.
And what about tan theta? From this you can get tan theta is equal to 1 by cot theta, and cot theta is equal to 1 by tan theta. Okay, तो मैंने स्टार्टिंग में ओनली वी हैव 3 फार्मूला, नाउ वी हैव लॉट ऑफ फार्मूला. मैंने बोर्ड भर दिया, तुम भी अपने स्मार्टनेस को शो करते हुए ओनली मेमोराइज ओनली 3 फार्मूला, यू कैन राइट द सो मेनी फार्मूला, एंड दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. We have lot of formula in trigonometry, and by step you will get all the formula. Now see here, the second type of question we have. Suppose we have a right angle triangle ABC. Suppose here is angle B is 90 degree. Let us this angle given, this side given 30 centimeter or this side given 5 centimeter. You have to find the ratio for this angle theta, all the trigonometrical ratio for this angle theta. Given figure ABC is a right angle triangle, B is right angle. The question here, from given figure, find the value of all T ratio. What do you mean by T ratio? T ratio means trigonometrical ratio. You have to find all the trigonometrical ratio from this given figure, supposing this angle is theta. In the beginning, you think it's a very hard question, but consider me, it's a very easy question. You have given hypotenuse, since this angle is of 90 degrees, so this one is a hypotenuse. This angle is perpendicular. You have, remember, we have a formula that is Pythagoras theorem. On applying that formula, you easily evaluate this BC. मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, बट हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो. पाइथागोरस थ्योरम में तुमने सीखा है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सीखे हो. मैं अगले वीडियो में तुम्हें यह भी सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे इजी वे में कर सकते हैं. लेकिन यह तो तुम्हारा ज्योमेट्री का पोर्शन है और अभी हम क्लास ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का. सो कंसीडर इट, केवल हम ट्रिगोनोमेट्री की भी चर्चा करें तो बेटर होगा. तो देखो हाइपोटेनियस 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर वी हैव, और बेस BC वी हैव टू फाइंड. सो इट्स अ BC स्क्वायर. 13 स्क्वायर यू नो, 13 इंटू 13 करोगे 169 हो जाएगा. 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. अब कम से कम तुम 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो इतने स्मार्ट जरूर हो कि तुम डायरेक्ट लिखोगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 144. देयरफॉर b इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 12. बट तुम्हें मालूम है b बेस है, जो डिस्टेंस है, हमें नेगेटिव 12 नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव 12 लेना है. सो b इज इक्वल टू 12. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द 3 साइड्स. You want to find out all trigonometrical ratio? So see here how we can do it. Suppose first we have to find sin theta. मैंने क्या कहा था? फॉर्मूला क्या लगाना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तुम्हें दिक्कत है तो छोटा छोटा ब्रैकेट में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. तो अब यदि तुमने ये लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख लिए. शॉर्ट में लिख लो कॉर्नर में. और देखो साइन थीटा लेना है तो फर्स्ट कैसे लेंगे? p बाय एच. इस एंगल के लिए थीटा हो जाएगा ये p बाय एच. p है हमारा 5 और h है 13, तो 5 बाय 13 हो जाएगा. इजी वे में निकला. अब तुम cos थीटा के लिए चाहोगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाय एच. तो b हो गया 12 बाय 13. और tan थीटा के लिए तुम चाहोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? p बाय b. तो p है तुम्हारा 5 और b है 12. तो तुमने 3 निकाल लिया. अब बाकी को तो तुम कन्वर्ट करते जाओ, निकलते जाएगा. बाकी कन्वर्ट कैसे करोगे? साइन को कन्वर्ट करोगे, रिवर्स ऑफ साइन कॉसेक हो जाता है. ये लिख दो डायरेक्ट 13 बाय 5. कॉस को कन्वर्ट करते हो तो सेक हो जाता है. सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय 12. और यदि तुम tan को कन्वर्ट करोगे तो cot थीटा होगा और cot थीटा इक्वल टू 12 बाय 5. इट मीन सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल लिए. ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट हैं. ट्रिगोनोमेट्री होगा, कैलकुलस होगा, वेक्टर होगा,
डायनामिक्स होगा, जितने भी हैं, अलजेब्रा होगा जूनियर क्लासेस के लिए, स्टैटिक्स होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, एक एक चैप्टर वाइज हमारा तुम वीडियो सर्च करोगे और बड़ी इजी वे में। ये तो ट्रिगोनोमेट्री का मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है, मैं हार्डर से हार्डर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा और इजी वे में, बिलीव करो बहुत इजी वे में तुम इसे समझोगे। बट यदि तुम चाहते हो कि मेरी वीडियो तुम्हें बार बार मिलते रहे तो तुम्हें लॉग इन करना है SSC के रूप में, या जो भी कमेंट्स है, जो भी तुम्हें मेरे बारे में अच्छा लगा खराब लगा, तुम्हें मुझे लिखना होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम है तुम झा सर लिख लो, झा सर 1971 के रूप में लिखोगे gmail.com पर, झा JHA झा SIR सर 1971 @gmail.com इस पर लिखोगे। और किसी भी प्रकार की तुम्हारी क्वेरी है, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें इजी वे में सॉल्व करके दूंगा। और जब तुम चाहोगे, 24 आवर्स की सर्विस है, हमारे इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड सर्विस चलता है, बड़ी इजी वे चलता है। स्लम स्टूडेंट के लिए, लो इनकम स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा चलता है। और पैसे वाले का क्या कहोगे, उनके पैसे हैं, वो कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते, बट जो लेवरेज स्टूडेंट है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो हमारी सर्विस तुम्हारे लिए हर समय अवेलेबल है। SSC पर लॉग इन करो या फिर हमें लिखो झा सर 1971। मैं तुम्हारा हूं और एक्चुअली है कि मैं तुम्हारे बीच से ही निकला हूं। मैंने स्कूलों में देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते, और जिसका प्रारूप है कि मैं क्लास लेता था, आवर वाइज क्लास हुआ, ग्रुप क्लास हुआ, लेकिन मैं सारे चीज लेते हुए भी उन बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह नया ऑप्शन शुरू किया हूं। जब भी चाहो, जिस चैप्टर को चाहो, चैप्टर वाइज तुम सर्च कर सकते हो, झा वीडियो पर आओ या झा सर पर लिखो। और हैव ए गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो, आगे लाइफ में सक्सेस करो, हमारी हार्टेस्ट ब्लेसिंग तुम्हारे साथ। थैंक यू।